براہ راست شو فضل ربی میں زندگی ٹیلی ویژن پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو مہربان ہے، جو محبت کا خدا ہے، جو تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سب پر مہربان ہے۔ اور آج ہم اس شو میں پاکستان میں جو صورتحال ہے، بہت سے معصوم بے گناہ لوگ مختلف شہروں میں لقمہ اجل بن گئے ہیں، ان تمام واقعات میں مارنے والے بھی انسان، مرنے والے بھی انسان۔ کن تعلیمات، سوچوں، فلسفوں کی روشنی میں انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم جنس انسان کی زندگی کے چراغوں کو گل کرنے تک پہنچ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت لوگ غم زدہ ہیں، سوالات ہیں، وسوسے ہیں، امن، سلامتی، بھائی چارہ، احترام آدمیت، برداشت، صبر، یہ سارے الفاظ تو موجود ہیں مسجدوں میں، مندروں میں، چرچز میں، گردواروں میں، سیناگوگز میں، مختلف جو معبدیں ہیں، مختلف جو عبادات کی جگہیں ہیں، وہاں پر یہ تمام الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ شاید اتنی اونچی آواز میں بولے بھی جاتے ہیں کہ وہ ان دیواروں کے اندر، ان جگہوں کے اندر ہی رہتے ہیں، نہ دل کو چھوتے ہیں، نہ بے حس ضمیر کو جگاتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم ان تمام واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔ سوالات کے جوابات کلام خدا نے ہمیں بہت واضح رہنمائی دے رکھی ہے کہ پوری دنیا کی کتابیں، پوری دنیا کے فلسفے، پوری دنیا کی حکمتیں جب بے بس اور لاچار نظر آتی ہیں، ان کے جواب بھی سوال ہی رہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم کلام خدا کی طرف رجوع کریں۔ اور جب یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم میں یہ لڑائی جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو، مسیحوں کو، یہودیوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم الہامی دین رکھتے ہیں، ہم سچے خدا کی پیروی کرتے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میں یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ آپ سب سے درخواست ہے، نئے عہد نامہ میں یعقوب کا خط ہے، پڑھیے۔ نوجوانوں سے درخواست ہے، علماء سے درخواست ہے، مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، یا بائبل کو نہیں بھی مانتے، آپ کو ان سوالات کے جوابات کے لیے اگر کہیں سے رہنمائی مل سکتی ہے، اگر کہیں سے آپ کو تسلی مل سکتی ہے، اگر کہیں سے سچی بات جو تبدیل کر سکتی ہے ان حالات کو مل سکتی ہے، تو وہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ یہاں پر اس سوال کا جواب ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ کہاں سے آ گئے یہ لڑائی جھگڑے؟ کیا یہ خدا کی دین ہے؟ کیا یہ مذاہب کی تعلیمات کا حصہ ہے؟ کیا آپ اپنے گھر میں جھگڑے کرنا پسند کرتے ہیں؟ کیا اپنے گھر میں قتل و غارت کرنا پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی مساجد میں، چرچز میں، گردواروں میں، سیناگوگ میں، کیا لڑائی جھگڑے خدا کی مرضی ہے؟ یہ لڑائی جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں، تمہارے اندر فساد کرتی ہیں، جو تمہاری فطرت کا حصہ ہیں؟ اب ان خواہشات کو جو غیر خدائی ہیں، ان کو خدائی رنگ میں ڈھالنے کے لیے
तरीका क्या दिया गया है। अगर हम इस बात को और ज्यादा वाज़े तौर पर देखना चाहते हैं तो रोमियो का खत है और उसके 7वें बाब में लिखा है, जब पौलुस रसूल इस बात को खोलता है तो वो ये कहता है, गर्ज में ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं। मुझे है शरीयत से मोहब्बत, मैं कायल हूं शरीयत का, मैं इस पर चलना चाहता हूं। लेकिन आगे फिर वो इस बात को खोलते हैं, वो कहते हैं, मगर मुझे अपने अज़ा में, अपने अंदर एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। मेरे अजीजों, आप मस्जिद में बैठे हैं, मंदिर में हैं, चर्च के अंदर हैं, आज सुनिए कि गो खुदा की शरीयत की पहचान, उस पर चलने के लिए माइल होना, कायल होना, उसको पसंद करना बड़ी अच्छी बात, लेकिन उस पर अमल पैरा होने के लिए यहां पर जरूर है कि मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे गुनाह की कैद में ले आती है, गुनाह करवाने के लिए मुझे माइल करती है, मुझे खींच लेती है। मैं गुनाह नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे हो जाता है, क्योंकि मेरे अज़ा के अंदर यह शरीयत मौजूद है जो गुनाह की तरफ मुझे ले आती है, मेरे अज़ा में मौजूद है। फिर वो कहता है, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। मौत का जिक्र है कि मौत से मौत पैदा होती है, जिंदगी से जिंदगी पैदा होती है। अगर कोई कहे कि मैं जिंदगी की राह पर हूं, मैंने जिंदगी को बोया है और वहां से मौत निकले, ये हो नहीं सकता। आज जरूरी है कि कलाम खुदा में लिखा है, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता। अच्छा दरख्त, अगर अच्छा दरख्त है, टाइटल है अच्छाई भलाई, अच्छा दरख्त है तो फिर वो अच्छा फल लाता है, और अगर बुरा दरख्त है तो वो बुरा फल लाता है, ये पहचान है। और आज अगर हम इन बातों की तरफ कायल और माइल नहीं होते तो फिर याद रखिए, तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए। वो गैर खुदाई ख्वाहिशात जो गुनाह की कैद में ले आती हैं, जिस नेकी का इरादा करता हूं वो होती नहीं लेकिन बदी हो जाती है, कौन मुझे इससे छुड़ाएगा। आज हम इसी पर बात करेंगे। तो रास्ता क्या है बहाली का, आइए देखते हैं। दूसरी तवारीख की किताब है। अब बहाली कैसे आ सकती है अगर इन राहों पर जा चुके हैं। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आज पाकिस्तान खून आलूद है, हर तरफ खून की होली खेली जा रही है। लोग हैरान हैं, यह सिलसिला कैसे रुकेगा, किसी के अंदर यह ताकत है या नहीं। चर्चिस के अंदर इबादत हो रही हैं, लेकिन क्या वो खुदा की मर्जी पर चलने वाले हैं। मसाजिद में दुआएं हो रही हैं, खत्म दिए जा रहे हैं, नजराने चढ़ाए जा रहे हैं, नियाजें दी जा रही हैं, लेकिन क्या खुदा की मर्जी के मुताबिक लोग चल रहे हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह पर नमाजें हैं, मज़ारों पर चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, और इसके बावजूद मौत इंसानों को शिकार करती चली जा रही है। क्या बहाली की कुराह है? तब अगर मेरे लोग, ये कौन से लोग हैं? खुदा कह रहा है मेरे लोग कौन? जो खुदा
जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा जिसे बाइबल में कहा गया है, जो उसके सच्चे और हकीकी पैरोकार हैं, अगर वो मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, जो दावा करते हैं कि हम खुदाए वाहद की परस्तिश करने वाले हैं, खाकसार बनकर, सर में खाक डालकर, ये एक एक्सप्रेशन था पुराने अदवार में, कदीम अदवार में, जब कोई शख्स अपने सर में खाक डालता तो इससे मुराद ये थी कि वो खुदा के आगे अपने आप को ताबेदारी में ले आया है। खाक सर बनकर खाक सर में डालना, अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे कर देना। अगर ये कायलियत आ जाएगी कि मैं नहीं, खुदा, मेरी तंजीम, मेरा एजेंडा, मेरी डिनोमिनेशन नहीं, खुदा का कलाम, मेरे मज़ार नहीं, खुदा का कलाम, इसमें चाहे मुझे कुछ मिलता है या नहीं मिलता, वो खुदा जो राज़िक है, वो खुदा जो कादिर मुतलिक है, वो खुदा जो संभाल लेने वाला खुदा है, वो मर नहीं गया, उसकी ताकत महदूद नहीं हो गई। अगर दीवारें हैं तो वो गुनाह है। यसाया में, यर्मिया में लिखा है, अगर आप पढ़े तो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया, खुदा की ताकत कम नहीं हो गई, वो बचा सकता है, लेकिन तुम्हारे दरमियान एक दीवार आ गई है और वो गुनाह की दीवार है, खुदा की कुमक और मदद पहुंच नहीं रही। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहां जहां भी पूरी दुनिया में ये नशरियात देखी जा रही हैं, मैं दरखास्त करता हूं, मैं मिन्नत करता हूं, मैं बच्चे जिनके मर गए वो रो रही हैं, आंसू थम नहीं रहे, जिन घरों के सरबराह इस दुनिया को छोड़ गए हैं, उनकी हालत को आप और मैं महसूस करने से कासिर हैं। वो लोग जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, बीवियां खो दी हैं, वो लोग जो इस वक्त गम की हालत में हैं, करब की हालत में हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, आपको खुदा ने एक राह दे दी है। इसलिए जरूर है चर्चिस के अंदर, मस्जिदों के अंदर, सिनागोग के अंदर लोग खाकसार हो जाएं। अगर मेरे लोग खाकसार बनकर क्या करें? खुदा मुबहम बातें नहीं करता, खुदा वाज़े और साफ बातें करता है। खाकसार बनकर दुआ करें, दुआ से मुराद उसको पुकारें, घरों में झुक जाएं अपने घुटनों के बल, चर्चिज में, मंदिरों में, मस्जिदों में, पाकिस्तान की सड़कों में, गलियों में, बाजारों में, हर जगह पर, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में। मेरी ये दरखास्त है आज, अगर आप बहाली चाहते हैं, खुदा का ये पैगाम, ये रास्ता आपके लिए है, दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों, मेरी तरफ रुजू करें, मेरे मुश्ताक हों, मेरे तालिब हों। और फिर आगे लिखा है, अपनी बुरी राहों से फिरें, हर वो राह जो खुदा के कलाम से मुतसादिम है उससे फिरें। तो मैं, ये खुदा कर रहा है, कुछ आपने करना है, फिर जो खुदा करेगा ये देखिए। मैं आसमान से सुनकर, जब आप पुकारेंगे, खुदा कह रहा है मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा, दीवार को गिरा दूंगा, गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को, उनकी जिंदगियों को, उनके खानदानों को बहाल कर दूंगा। क्या हम इस तरफ आने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ मुख्तलिफ कॉलर्स हैं, उनसे बात करते हैं। बहन एस्टर हमारे साथ हैं इस वक्त। बहन एस्टर, खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच डॉक्टर डैनियल कि आपने आज मुझे फिर इनवाइट किया, और ख़ास तौर पर मेरा दिल आज बहुत गमज़दा है इस बात के लिए कि ये जो हम सुन रहे हैं कि ये बम धमाकों के बारे के अंदर, तो मेरे भाई आप बड़ा अच्छा टॉपिक लेकर आए उन गमज़दा माओं के लिए, उन गमज़दा बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो कि आज गम के आंसू रो रहे हैं। हमें बड़ी जरूरत है, जिस तरह आपने कहा, कि घुटनों के बल होने की, दुआ करने की, क्योंकि जो काम इंसान नहीं कर सकता वो खुदा का रूह करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत शुक्रिया। हालेलुया का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की तारीफ हो। बहन, इंसान सब जानते हैं
کہ خدا زندگی دینے والا ہے، لیکن وہ زندگی کے چراغوں کو گل کرنے کی طرف چل نکلے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آج کا انسان بہت اس نے غلط سٹیپ لے لیا کہ انسان کو انسان ہی قتل کر رہا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پیدائش کے اندر دیکھیں، بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب میں جا کر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا نے انسان کو کریٹ کیا، خدا نے انسان کو بنایا تو اپنی شبیہ پر بنایا، اور جب خدا نے اس کو بنایا اور پھر اس کے قریب آ کر اپنی زندگی کا دم پھونکا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب زندگی کا دم پھونکا تو لکھا ہے کہ پھر انسان جیتی جان ہوا. دراصل آج اگر انسان ہی انسان کو قتل کر رہا ہے تو وہ خدا خود بن کر قتل کر رہا ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ انسان کا قتل کرے، بلکہ خدا نے تو انسان کے لیے محبت کے ساتھ بنایا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑے خطرناک بات ہے کہ آج انسان خود خدا بن بیٹھا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا کہ جو کوئی میرے مقدس کو گرائے گا میں اس کو گرا دوں گا. تو میرے بھائی، میں آج ان بہن بھائیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ غلط کاموں کو چھوڑے، یہ غلط حرکتوں کو چھوڑ کر خدا ان کے کلام کی طرف رجوع کریں، کیونکہ خدا نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا تاکہ انسان کو مار ڈالے، بلکہ محبت کے لیے، پیار کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے نہیں، ان تمام جھنجھٹوں کے لیے نہیں، بلکہ خدا نے انسان کو محبت کے لیے پیدا کیا. اور آج میں ان کے ساتھ جو آج غم زدہ لوگ ہیں، جو پریشان ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے اور خدا کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ان تمام بری حرکتوں سے باز آئیں اور خدا ان کے کلام کے مطابق زندگی گزارے. بہت شکریہ بہن ایسٹر، بہت شکریہ. آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ انسان خدا کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو غم زدہ خاندان ہیں، میں چاہوں گا آپ دعا کیجئے. اور لکھا ہے کلام میں کہ جو اعلیٰ حکومتیں ہیں ان کے لیے، اور پھر یہ جو غم زدہ خاندان ہے، اس کے جتنے خاندان ہیں ان کے لیے، جو زخمی ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے، اور لا انفورسمنٹ کے لیے اسپیشلی دعا کریں کہ جو وہاں پر ساری حفاظت کے جو امور ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں، خداوند ان کی حفاظت کرے، ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائے. میں چاہوں گا آئیے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکاتے ہیں اور بہن ایسٹر کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک خدا، اس وقت ہے پاک کو ہم دیکھ ڈاکٹر ڈینیل کے ساتھ مل کر اور اسی طرح جتنے بھی تیرے پیارے خدا ہم دیکھ تیری حضوری میں جھکے ہیں، ان سب کو لے کر میں تیری حضوری میں آتی، کیونکہ خدا ہم دیکھ تو زوراور خدا ہے، اور تیرے کلام میں لکھا کہ تیرے زور سے زوراوروں کی کمانیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو صاحب جنگ یہوہ تیرا نام. اے میرے پاک ہم دیکھ ہم ان پیاروں کی جنگ تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، تاکہ خدا ہم دیکھ تیرا پاک روح خدا ہم دیکھ میریکل کرے، کیونکہ تو ناممکنات کا خدا، اور جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ تیرا پاک روح کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے پاک خدا، ہم ان غمزدہ خاندانوں کے لیے جن کے بیٹے، جن کی بیٹیاں، جن کی مائیں، جن کی بہنیں، جن کے بھائی میرے پاک ہم دیکھ، اے پاک ہم دیکھ اس حادثے کے اندر سو گئے، میں دعا کرتی میرے پاک ہم دیکھ ان کو تسلی، اطمینان اور تشفی بخش میرے پاک خدا. اور خاص طور پر میں دعا کرتی اے ہم دیکھ ان تمام اے پاک ہم دیکھ ملک کے حکمرانوں کے لیے دعا کرتی کہ تیرا پاک روح ان کو بھی حکمت کا روح دیں، تاکہ اپنی حکمت کو پیچھے کر کے تیری حکمت کو استعمال کرتے ہوئے میرے پاک ہم دیکھ مسیح یسوع کے نام سے اس حکومت کو آگے لے کر چلیں. اور میری دعا ہے ملک پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے پاک ہم دیکھ ممالک کے لیے، خاص طور پر مندروں کے لیے، مسجدوں کے لیے اے پاک ہم دیکھ، اسی طرح چرچز کے اندر، منسٹریز کے اندر، ایک ایک کے اندر میں تیرے پاک لہو کو مانگتی اور دعا کرتی کہ تو اپنی قدرت والا ہاتھ بڑھا کر ان پیاروں پر رکھ، اور مسیح یسوع کے نام سے اے پاک ہم دیکھ ان کو بلیس کر برکت دے، تیرے پاک لہو کی اے پاک ہم دیکھ باڑ کو مانگ لیتے ہیں. کیونکہ جس طرح کو ہم دیکھ تیرے کلام میں لکھا زبور 125 کے اندر کہ جس طرح تو نے یروشلم کو پہاڑوں سے گھیر رکھا، اسی طرح تیرا پاک روح ان تیرے پیاروں کو گھیر لے، تاکہ پاک ہم دیکھ مسیح یسوع کے نام سے یہ تیرے کبھی بازو کے نیچے محفوظ رہیں، اور تیرا فضل والا ہاتھ انہیں برکت،
हिकमत का रूह बख्शे मेरे पाक हम, ताकि ये तेरे कलाम के मुताबिक चलें, तेरी मर्जी को पूरा करें, अपनी मर्जी को पीछा करके तुझे खुश करें ताकि जलाल तुझे मिले। क्योंकि खुदा देख, जिस तरह पौलुस रसूल कहता, अब तक अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा का बंदा ना होता। खुदा देख, मिन्नत करती उन तमाम मैं पाक हम देख टेररिस्ट को हिकमत का रूह बख्श दे। तेरा कलाम मैं कुरान देख जो ला तब्दील बदल देने की कुदरत रखता है मेरे पाक खुदा, यीशु के नाम से तेरा पाक रूह उनको तब्दील करे ताकि हम तेरी गवाही सुने और इन मेरे प्यारों की परेशानियां खुशी में बदल जाए। जितने भी खुदा देख इस वक्त तेरी हजूरी में झुके, एक एक की दुआ तेरी हजूरी में मकबूल ठहर जाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। बहन एस्टर हमारे साथ थी, अक्सर वक्त निकालती हैं, खुदा की खादिमा हैं और खुदावंद उन्हें बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है। बहन एस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शरीक हुई। थैंक यू सो मच ब्रदर डैनियल। आज हमारा जो मौजू है वो वही है कि पाकिस्तान के लिए दुआ और कलाम खुदा से तसल्ली। तो मैं आपके सामने दुआ के ताल्लुक से जो आयात हैं वो रखना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा किसी एक शख्स, कबीले, कौम या हुकूमत का तरफदार नहीं है। जब कलाम खुदा में लिखा है, हम तिमोथियस का ख़त 2 बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है पहली आयत से, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, सब आदमियों के लिए की जाएं। मौलाना हाली ने कहा था, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, तमाम ज़मीन पर बसने वालों पर मेहरबानी करो। तो फिर आसमान की बात उन्होंने की, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, ज़मीन पर मेहरबानी ही आसमान से मेहरबानी को लाती है, सब आदमियों के लिए दुआएं की जाएं। फिर आगे लिखा, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो आराम के साथ जिंदगी गुजारें। बहाली का रास्ता दुआ लिखा, सब बादशाहों बड़े मर्तबा वालों के वास्ते। मकसद क्या है? जब दुआएं होंगी इसलिए कि हम कमाल दीनदारी, जो खुदा के अहकाम हैं उसकी पैरवी में संजीदगी से अमनो आराम के साथ जिंदगी गुजारें। सब इंसानों के लिए अमनो आराम से जिंदगी गुजारें। कुरान की बहुत सी आयात हैं, बाइबल की बहुत सी आयात हैं। खुदा फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। ये फिर लिखा, ये जो बात है खुदा के लिए, ये हमारे मुनाजी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। अगर आज कोई मसीही या मुसलमान ये समझता है कि मुझे खुदा को खुश करना है, खुदा को पसंद क्या है, खुदा फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता, तो किनको पसंद करता है? हमारे मुनाजी खुदा के नजदीक उम्दा, बेहतरीन और उसकी पसंदीदा है कि लोग अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। खुदा के नजदीक ये उम्दा, बेहतरीन और पसंदीदा है। अगर खुदा को पसंद आना है तो आराम, सुकून, लोगों की भलाई, ये खुदा का मंसूबा है। हमारे साथ एक और हमारे मेहमान टेलीफोन पर हैं, अरसा दराज से खिदमत में हैं, खुदामंद के खादिम हैं, हमारे साथ हैं आज इस दुआया शो में। खुदामंद ने उनको बरकत दे रखी है, पासमानी खिदमत, और उसके साथ साथ खुदामंद उन्हें इस्तेमाल कर रहा है अपने नाम को जलाल देने के लिए। पास्टर सैमुअल एरिक हमारे साथ हैं। मोहतरम पास्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, ठीक है, बिल्कुल, खुदा का शुक्र है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया और साहब। आज का खुदावंद आपके साथ रहे, क्योंकि आप खुदा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। खासतौर पर जो आपने आज दुआ के लिए रिक्वेस्ट की है, और पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किलात में है, खुदावंद उन सारे खानदानों को जिनके साथ ये इतना बड़ा सानिया हुआ है, खुदावंद उन्हें तसल्ली दे, क्योंकि किसी एक जान का जाना भी जो है इस दुनिया से
وہ بہت ایسا ہے کہ ہم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو مجھے انتہائی دکھ ہے کہ ملک پاکستان میں اتنی بڑی کارروائیاں جو یہ 4-5 دن کے اندر ہوئی ہیں. پاسٹر صاحب بہت شکریہ. معافی آپ کی بات روک رہا ہوں، آپ تسلی کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں اسی بات کو چاہوں گا کہ آپ کلام سے کوئی تسلی کی آیات اگر بتانا چاہیں، اور اس کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ امن کے لیے خاص دعا آپ کیجئے گا اور غم زدہ خاندانوں کے لیے بھی. تو بائبل سے اگر کوئی تسلی کی آیات آپ شیئر کرنا چاہیں. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، کلام مقدس میں تو بہت سا جگہ پر، کیونکہ ہمارا کلام تو آپ کو پتہ ہے پورا تسلی کا، محبت کا اور تسلی کا کلام ہے، اور ہر جگہ ہمیں تسلی ہی ملتی ہے. لیکن میں دوسرا تسلیکیوں کے تیسرے باب سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھوں گا. جی ضرور. کہتا ہے، غرض اے بھائیو ہمارے حق میں دعا کرو، کیونکہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اے بھائیو غمزدوں کے لیے دعا کرو تاکہ انہیں تسلی ملے، اور جو مصیبت زدہ ہیں ان کے لیے دعا کرو، جو مشکلات میں ہیں ان کے لیے دعا کرو. تو ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند ایسے لوگوں کو جو کہ ایسے بھیانک خیالات رکھتے ہیں، جو انسانوں کی جان لے رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، خداوند انہیں یہ حکمت بخشے کہ آپ کیوں مطلب کہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں. خاص طور پر ان کے لیے جو اس چیز کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں اور جو کرواتے ہیں، خدا انہیں مطلب کہ ان کی عقلوں کو کھولے، کیونکہ اس جہاں کے خدا نے ان کی عقلوں کو بند کر دیا ہوا ہے، اور وہ اس جہاں کے خدا کے مطابق وہ یہ بم بلاسٹ اور لوگوں کو مارنا، یہ سب کام جو ہے اس جہاں کے خدا کے یعنی کہ ابلیس کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے یہ بات کھول دی ہے کہ کون سی روح ہے جو موت کی طرف لوگوں کو لے آتی ہے کہ خود اپنی جانوں کا بھی خاتمہ کریں اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی بھی جانیں لیں. کون سی روح اس کے پیچھے ہے، کون سی تعلیمات اس کے پیچھے ہیں، یہ پاسٹر صاحب نے بہت واضح کیا. اور یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہے، یہ پاسٹر صاحب کی بات نہیں ہے، یہ ذاتی ان کی رائے نہیں ہے، یہ انہوں نے سیکھا ہے کلام سے، کہ کلام یہ کہتا ہے ابلیس جو آتا ہے وہ مارنے، چرانے اور ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے، یہ اس کا کام ہے. اور یہی پاسٹر صاحب نے کہا، اور خدا ہے جو ابلیس سے ہمیں بچا سکتا ہے. پاسٹر صاحب دعا کیجئے کہ خداوند آنکھیں کھولے تمام جو لوگ ہیں وہاں پر، اور خاص طور پر جو بے گناہ انسانوں کا خون بہا رہے ہیں، خدا تعالیٰ ان کی زندگیوں میں مداخلت کریں، ان کی عقلوں کو روشن کریں، ان کے باطن کو روشن کریں. وہ زندگی لینے والے نہیں بلکہ زندگی کو بحال اور بقا بخشنے والے بن جائیں. دعا کیجئے گا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. جی دعا کرتے ہیں. آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آج ہم تیری اس بارگاہوں میں موجود ہیں، کیونکہ اے خدا باپ، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں خدا اس چوکی پر موجود ہیں، اور اس غم کی حالت میں پہلے خدا تیرے سامنے التجا کرتے ہیں کہ خدا باپ، جو ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، پہلے خدا جو قیمتی جانیں لی جا رہی ہیں، آئے باپ ہم تیرے آگے التجا کرتے ہیں کہ خدا باپ تو ان لوگوں کو جو پہلے خدا ایسے خیالات اور منصوبے باندھتے ہیں، ان کے منصوبوں کو فنا کر دے پہلے باپ. اور خدا اس ملک پاکستان میں پہلے خدا امن ہو، اور خدا لوگ جانے کہ تو ہی پیارا باپ ہے جو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ تو عبدالآباد زندہ ہے. اے خدا تو پہلے خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر ملک پاکستان کو، اور خصوصاً پہلے خدا وہاں کے پہلے ان محکموں کو جو پہلے خدا لوگوں کی جان و مال کا خیال رکھتے ہیں، انہیں عقل و دانش سے معمور کر، تاکہ پہلے خدا وہ ایسے لوگوں کو جو پہلے خدا لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، خدا ان کا مقابلہ کر سکیں. انہیں پہلے خدا ہمت سے معمور کر، تاکہ پہلے خدا لوگ جانے کہ تو ہی حقیقی باپ ہے.
میں ملک پاکستان کی کلیسیا کے لیے بھی خاص طور پر دعا. خدا تو انہیں بڑی برکت دے اور خدا انہیں بڑھا تاکہ تیرے نام کو جلال ملے. یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں. آمین آمین. بہت شکریہ پاسٹر ایرک ہمارے ساتھ تھے. سیموئل ایرک صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو براہ راست شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں. جی سر، کیسے آپ؟ جی خداوند کا شکر ہے بھائی، آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟ پاکستان میں اس وقت لوگ غم زدہ ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں. بہت سے اپنے قیمتی اور عزیز لوگ جو ان کے ساتھ تھے اس وقت ان میں موجود نہیں ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں، کیا تسلی دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ کلام سے بڑھ کر کوئی تسلی نہیں ہے. ان کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں جی ضرور. کلام مقدس میں سے، اور اس کے بعد ہم ان کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ خداوند ہی تسلی دے سکتا ہے. اور جب خداوند تسلی دیتا ہے تو اس کی تسلی جو ہے وہ ابدی تسلی ہے. جی ضرور پڑھیے حوالہ آپ. بہت شکریہ. پڑھیے. اور میں یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 33 آیت میں سے میں پڑھوں گا. یہ خداوند یسوع مسیح کے لفظ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں. تو سب سے بڑا جو پیس ہے یا اطمینان ہے، یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے، وہ تسلی پائیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی سچویشن ہے، جو بھی حالات ہے، یسوع پر ایمان رکھے، خدا پر اعتقاد رکھے، وہ آپ کو اس حالاتوں سے نکال سکتا ہے. اور جو کچھ ہوا ہے یہ برا ہوا ہے. کوئی بھی نہیں ہے ایسا خدا جو اس کی فیور میں ہے. تو ہم دعا کریں گے کہ خدا ان غم زدہ خاندانوں کے آنسوؤں کو وہ خود پہنچتا ہے. جیسا مریم اور مارتھا کے گھر میں یسوع مسیح چلا گیا، ان کے آنسوؤں کو پہنچ دیا. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح آپ ان کے گھروں میں وزٹ کرے اور ان کے آنسوؤں کو پہنچ دے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محترم پاسٹر صاحب ہیں انہوں نے، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر صاحب آپ ایک مختصر دعا کیجئے. یہ جو خاندان ہیں غم زدہ، ان کو تسلی ملے، ان کے لیے دعا کیجئے. آئیے ہم دعا کریں. خداوند یسوع مسیح ناصری، ہم تیرے پاس آ کر ان تمام غم زدہ خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند گویا کہ یہ زخم بہت بڑا ہے، انسانی لیاقت سے، اس کی کوشش سے بڑا ہے، لیکن تو ایسا خدا ہے جو زخموں کو جوڑ دیتا ہے. تیرے کلام میں لکھا خداوند میں خداوند تیرا شافی ہوں. پاک خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ابھی اسی وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں یا ان زخمیوں کے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ماتم کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس اسکرین کے ذریعے سے، اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اس وائس کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر تیرا اطمینان کام کرے. خداوند ہمارا ایمان ہے کہ دعا میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی ڈسٹینس نہیں ہے. یسوع کے نام میں خدا سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک انہیں چھولے. پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اطمینان آئے. خداوند ان تمام طریقے کی قوتوں کو جو اس کام کے پیچھے جو لوگوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے، ہمیں یسوع کے نام میں باندھ دیتے ہیں. خدا پاکستان کے اندر سارا غم کا کلاؤڈ جو ہے، جو بادل چھائے ہوئے، یسوع مسیح کے نام میں ریموو ہو جائے، اور خداوند خوشی کا بادل یسوع کے نام میں چھا جائے. خوف جاتا رہے گلیوں کے اندر سے، بازاروں کے اندر سے، خوف یسوع کے نام میں جاتا رہے. پاک خداوند چولے اور یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پاسٹر صاحب تھے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. کلام خدا میں لکھا ہے مجھے پکارو تو میں تمہیں جواب دوں گا، بڑی بڑی گہری باتیں تم پر آشکارا کروں گا. ہم
दुआ के ताल्लुक से सीख भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ होंगे पास्टर परवेज़ खोखर साहब। पास्टर परवेज़ खोखर साहब, खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप सर? शुक्रिया डॉक्टर दानियाल कि आपने मुझे ये शर्फ बख्शा कि आज मैं इस दुआया प्रोग्राम में, दुआया शो में अपना हिस्सा डाल सकूं। सर ये बताइएगा कि दुआएं मौसर कैसे होती हैं, चूँकि दुआएं हो भी रही हैं और लेकिन ये जो बदी की कुव्वतें हैं, तारीकी की कुव्वतें हैं, ये ऐसा लग रहा है कि इस तूफ़ान के आगे बंद बांधने में अभी शायद कुछ रुकावटें हैं। तो दुआ के ताल्लुक से मौसर कैसे हो दुआएं, ताकि लोग दुआओं का जवाब देखें, फ़क्त दुआएं ही ना रहें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इससे पहले कि आपका जवाब देते हुए मैं जिंदगी टीवी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आपने बड़ा सोच के ये नाम रखा कि जो जिंदगी को मिटाना चाहते हैं इस सफाई हस्ती से और जो मौत की आंधी चला रहे हैं जिंदगी टीवी पर, ऐसे लोगों के लिए जिंदगी का ही पैगाम है। और आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि आज अर्ज़ पाकिस्तान में हर कोई शख्स जो एक मजहब की सोच रखता है और उनके पास दुआ का कॉन्सेप्ट है, प्रेयर का कॉन्सेप्ट है, और वो ये कहते हैं कि हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, हम दुआएं भी करते हैं, लेकिन आपने कहा कि फिर इन दुआओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा। तो जनाब डॉक्टर दानियाल, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, बारी ताला गफूर और रहीम है। कलाम मुकद्दस का इरशाद है वो कहर करने में धीमे और शफकत में गनी है। पाक कलाम में बहुत सी दुआओं का जिक्र है जो जाती तौर पर, खानदानी तौर पर, कौम की सूरत में पेश की गई। यहूदी कौम पर एक वक्त मौत का फतवा सादर हो चुका था, मौत की तलवार लटक रही थी, लेकिन मलका आस्तर ने इनिशिएटिव लेते हुए खुद भी अपनी सहेलियां और पूरी कौम से कहा कि रोजा रखो और दुआ करो। और हम देखते हैं ऐसा नहीं कि दुआ का जवाब नहीं आया, उस दुआ का जवाब की आज भी तारीख शहादत देती है कि कौम से वो मौत टल गई और आज उस बड़ी खुशी और फतह पर ईद पुरीम यहूदी कौम मनाती है। लेकिन सवाल फिर यही है कि अगर दुआएं सुनी नहीं जाती तो क्या मिल्लत, कौम और मज़ाहिब के लोग जो हैं उन्हें सोचने की जरूरत है? तो बेशक सोचने की जरूरत है, क्योंकि याकूब के खत के 4 बाब की 3 आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। कलाम क्या रहा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। क्या सबब है, क्यों नहीं पाते, जबकि वो दुआओं का सुनने वाला, जवाब देने वाला, जिसने कहा दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्यों नहीं हम पाते? क्योंकि अगले हिस्से में लिखा है, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। आज मुल्क पाकिस्तान में हर एक मजहब फिक्र के लोगों को अपने रवैयों पर गौर करने की जरूरत है, अपनी रवशों पर जरूर करने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी तवारीख के 7वें बाब की 4वीं आयत में लिखा है, एक हल दिया गया है मुल्क की बहालियत का। मुल्क सिर्फ एक ही सूरत में बहाल हो सकता है, और वो ये है कि जब लोग खाकसर बनकर पास्टर साहब घमंड की जी, पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये जो आयत है, ये आगाज़ में इस पर मैंने थोड़ी सी बात की है, मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ चाहूँगा। आपने कहा बुरी नीयत से मांगते हो, तो आप इसका ये बताइए, कलाम के मुताबिक फिर ये जो नीयत बुरी है, ये अच्छी नीयत में कैसे ढलती है? कोई तरीकाकार भी है या सिर्फ तालीम की बात ही है? जी, ये बुरी नीयत ये है कि हमारे रवैये जो एक दूसरे सेक्रेटेरियन, डिनोमिनेशन यानी के डिवीजन की तरफ हैं। क्या ये मुल्क इस बात पर नहीं लिया गया कि हर एक को आजादी होगी, लेकिन इस मुल्क के एक अकीदा से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर जुलूस निकाले, ये उनका अकीदा है, तो उसके लिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी दरकार होती है कि वो ये कर ही ना सके। या कोई खुदा का नाम बरमला लेना चाहे तो उन पर भी पाबंदियां। ये नीयत, ये रवैये दुरुस्त नहीं है।
ये रवशें दुरुस्त नहीं है। कैसे दुरुस्त एक होंगी दूसरे को- पास्टर साहब, कैसे दुरुस्त होंगी ये बताइए। सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं उनका गुनाह माफ करूंगा जब वो माने कि ये हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, जो कि एक दूसरे को काटना है, एक दूसरे को लेट डाउन करना है। इससे एक ठीक तौबा करने की जरूरत है। मैं उनका गुनाह मुआफ करके उनके मुल्क को बहाल करूंगा, जिसका मतलब है इस गुनाह को, चाहे वो किसी अकीदा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। आज मैं ये कहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो आज जितने भी मजहबी लीडर हैं किसी फिरका के, किसी मसलक के, अगर वो लोग कहें कि आज मैं मानता हूं, मैं किसी को इंस्टिगेट नहीं करूंगा कि हम सच्चे हैं दूसरे गलत हैं, और ये करें, जब इस गुनाह को मान लेंगे खुदा के हुजूर कि जिस तरह से तूने हमें बनाया है, हम उस अकीदे के मुताबिक, उस कायलियत के मुताबिक चलेंगे। हमने बहुत कत्लो गारत कर ली, हमने बहुत कुछ कर लिया, खून की होली खेल दी, अब हमें मुआफ कर। और हमने जो कुछ मदरसों में करके जो कुछ तालीम दी, ये गलत कर लिया था, जिससे आज ये सारे नताइज निकले हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने ये बात सिर्फ बयान की। सच्ची तौबा, डॉक्टर दानियाल, सच्ची तौबा बदल सकती है। और खुदा गफूर और रहीम आज हमारे गुनाह को, मेरे, आपके, हम सब के गुनाहों को मुआफ करके अर्ज़ पाकिस्तान से इस लानत को दूर कर देगा, और ये तारीकियां जाती रहेगी, अंधेरे खत्म होंगे, रोशनियां, खुशियां और बहालियत का काम शुरू होगा। ये सब मुमकिन है। पास्टर साहब, आपसे दरख्वास्त है, मुख्तसर दुआ कीजिए कि इंसानों से जो नहीं हो सकता, बाइबल बयान करती है खुदा से हो सकता है। तो रूहुल कुछ कायल करे लोगों को कि वो अपने गुनाह को देख सकें, क्योंकि जब तक एहसास गुनाह ना हो, इकरार गुनाह ना हो, तर्क गुनाह हो नहीं सकता। तो पास्टर साहब, ये पहले जो दो चीज़ें हैं, पहले जो दो नकात हैं, एहसास गुनाह और फिर इकरार गुनाह ज़रूरी है, फिर तर्क गुनाह तक लोग आते हैं। तो आप दुआ कीजिए कि ये एहसास खुदा ताला अपने रहमो करम से जगा दे, ताकि हम ये जो आयात हैं इनकी तकमील को अपने बातन में, अपने ख़ानदानों में, अपने घरों में, अपने अर्ज़े वतन में देख सकें। पास्टर साहब, दुआ फरमाइएगा। रब्बुल इज्जत खुदा जलाल, आज हम सब मिलकर आंसू लेकर तेरे फजल वाले तख्त के सामने हाजिर हैं। खुदा, तू जानता है कि हमारे दिल उन दुखी गमज़दा लोगों के लिए, ऐ खुदा, पाश पाश हो चुके हैं, दर्द से टीसे हैं। हम उनके साथ बराबर के गम में शरीक होकर आज उन गासिबों के लिए, उन जालिमों के लिए, जिनकी अक्ल पर इस जहान के खुदा ने पर्दा डाला हुआ है, आए खुदा के पाक रूह, तू जो कायलियत का रूह है, आज एक ऐसी कन्विक्शन, एक ऐसी कायलियत आए कि बंद आंखें खुल जाएं, तारीकी की ताकतें छट जाएं। यीशु नूर आज उन तारीकियों में चमक, ताकि मुल्क से अंधेरे दूर हो जाएं, नफरतों की दीवारें जो बहुत ऊंची हो गई हैं, यीशु खुदा के नाम से ढा दी जाएं। और आज हर एक मजहब, हर एक फिरका, हर एक मसलक के लोग खुदावंद, खुदा मोहब्बत को बगलगीर हो सके, और मोहब्बत का पैगाम आज ले जो यीशु अल मसीह ने दिया। मोहब्बत सब गुनाहों पर पर्दा डालती है। आज इकरार गुनाह खुदावंद लबों पर आ जाए, और मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाओं में, आए खुदावंद, आज लोग ये कहें, तड़प उठे, हमारे गुनाह को मुआफ कर, हमारे मुल्क को बहाल कर। और आज हम मिलकर जिंदगी टीवी के सारे सामाईन के साथ और सारे स्टाफ के साथ डॉक्टर दानियाल की खुदावंद इस शो में सरबसजूद हैं तेरे हुजूर, और दुआ करते हैं, बहाल कर हमारे मुल्क को, रहम कर ऐ खुदा। हाँ, ऐ खुदा ऐसा कर, है खुदा ऐसा कर, यीशु के नाम से रहम कर, हमारे मुल्क से इस लानत को दूर कर, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन, आमीन।
पास्टर प्रेस साहब, बहुत शुक्रिया। खुदा है जो सब कुछ कर सकता है। आपने वक्त निकाला, दुआओं में याद रखिएगा, फिर आपसे बात होती रहेगी। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनके साथ बात करते हैं। ये बराह रास्त फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। हम पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके गम के लिए खुदा के हजूर में दुआ कर रहे हैं कि वो इंटरवील करे, वो मुदाखलत करे, इन सारी बदअमनी की कुव्वतों को दूर करे, अमन मोहब्बत प्यार बहाल करे, पूरी दुनिया में सलामती लाए। आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। आमीन आमीन। पाक साहब, बेशक कुछ टेक्निकल ख़राबी है, शायद दोबारा इनसे कहिए कि कॉल करें। नाजरीन, खुदा है जो सुनता है, खुदा है जो रहम के अपने वादे को पूरा करता है। ज़रूरत इस अमर की है आज जो अपने कलाम के वसीला से हमें राह बता रहा है। हम उस राह को कबूल करने के लिए, उस राह पर आ जाने के लिए, ताकि हम और हमारी नस्लें और आने वाली नस्लें खुदा ताला की पैरवी में उस बरक़ात, उन वादों की तकमील जो सलामती है, खुशहाली है, हमेशा की ज़िंदगी है, गुनाहों की मुआफ़ी है, बहाली है और बरकत है, उसको देख सकें। ये जो कॉलर हैं इनको दोबारा लीजिए और फिर मुझे मुतला कीजिए। हमारे साथ इस वक्त एक और हमारे टेलीफोन पर मेहमान साथ हैं, जनाब डॉक्टर JP गिल साहब। डॉक्टर साहब, मसीह के नाम में सलाम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब सलाम, खुदा का फजल है, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मौत का खेल जारी है और कलाम खुदा है जो हल है। जी, आंसू हैं, खुश्क होते जा रहे हैं, कंधे हैं, लाशों को उठा उठा कर बोझल होते जा रहे हैं। माएँ हैं, उनकी ममता की पुकार और चीखें खामोशियों में ढल रही हैं। सलामती की फाख्ताएं न जाने इस मुल्क का रास्ता भूल गई हैं। हर तरफ मायूसियों ने इस तरह से डेरे डाले हैं कि उम्मीदें हर जगह पे मुंह छुपाए फिरती हैं। इल्हाम की बातें करने वाले मिंबरों पे बैठे हुए तमाम वो लोग जो खुद को अक्ले कुल समझते हैं, उनकी अक्लें लाचार और बेबसी नजर आ रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे खुदा के कलाम से? सबसे पहले तो जितने अजीज जिनके खानदान इस हादसों से अफेक्टेड हैं, हमारी दुआएं कि खुदावन अपने रहम फजल को आगे बढ़ाकर, अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनको तसल्ली इत्मीनान दे और खुदावन उनको संभाले, क्योंकि इस वक्त में खुदावन की ज्यादा जरूरत है। और मैं पाक कलाम से देखता हूँ, मत्ती की इंजील में खुदावन यीशु बताते हुए कि दुआएं तो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग बहुत सी मजहबी बातों में शिरकत करते हैं, तो खुदावन दुआ की बात बताते हुए मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 7वीं आयत में कहते हैं कि तुम गैरों के मानद रेपिटिशन करना, तरह तरह की बातें करना और बाहरी दिखावे के लिए दुआएं करना, इससे तुम्हारी दुआ जो है कबूल नहीं होने वाली। तो अंदर जा, अपने दरवाजे को बंद कर, छुप कर सीक्रेट में दुआ कर, हिपोक्रेसी जो बाहरी दिखावा उसको बंद कर दे। जिसका मायना है कि खुदावन कहता है कि तो अपने आप को हलीम कर ले और रियल हकीकी तौर पर खुदावन को खोजने शुरू कर। जिसे इंसान पिघलता है, मगरूर मन जो है वो पिघल जाते हैं और हलीम होते हुए खुदावन के सामने अपने आप को पेश करते हैं। जिसमें बाहरी मजहबी बातें, जिसमें इंसान कई बार खो जाता है, जो कई बार पाक कलाम से ताल्लुक भी नहीं रखती, रीतें, रवायतें, रस्में, जिसमें इंसान जो है
एक्साइटमेंट में, जोश में होश खो बैठता है, जुनून इतना बढ़ जाता है कि जिसमें खुदाई रह नहीं जाती है, सिर्फ जुनून होता है। तो खुदावंद कहता है कि जब तुम ऐसी दुआ करोगे हलीमी के साथ, खुदा के उस परफेक्ट विल को, उसकी उस मनशा को, उस इच्छा को, उस मर्जी को जानते हुए करोगे, तो खुदावंद कहता है मैं तब तेरी दुआ सुनूंगा। तो खुदावंद जो ऐसे दुआ करने वाले लोगों को ढूंढता है, खोज रहा है, जो बाहरी दिखावा छोड़ के, मजहबी बातें छोड़ के, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस और इन सारे बातों को छोड़कर जो वाकई में रूह की बातों को खोजने वाले हैं, उनकी दुआओं को वो ढूंढ रहा है। तब खुदावन आसमान से हमारे पिघले मन को देखे, हलीम मन को देखे, टूटे मन को देखे। पाक कलाम में ज़बूर में लिखा है, टूटा और पिसा हुआ मन खुदावन जो है वो तुच्छ नहीं जानता, बेकार नहीं समझता है, उसको डिस्पाइस नहीं करता है, ऐसे मनों के वह करीब रहता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि इंसान जब अपने आप को छोटा करे, अपने तमाम गुरूर को, रियाकारी को, सेल्फ राइचसनेस को छोड़े, लेकिन ये छोड़े कैसे ये छोड़ेगा, इस पर थोड़ी सी बात कीजिए। हमारे पास थोड़ा कैसे छोड़ सकता है, वो राह क्या है, कोई एक दो स्टेप बताइए, ये होता कैसे है। लोग करना भी चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कैसे करें। तो कैसे वो गुरूर को छोड़े, कैसे वो रियाकारी को छोड़े, कैसे वो अपने आप को छोटा करे और ओपन हो जाए खुदा के सामने, ये कैसे होता है? देखिए, बड़ा सिंपल आसान बातें खुदा के पाक कलामे में बयान कर दी गई है कि जब तक खुदा से मुलाकात नहीं होती, यीशु मसीह ऐसे खुदावन जिस्मानी रूप में उस जामा पहन कर जमीन पर आगे, जिन्होंने हमें हकीकी तौर तरीका बता दिया कैसे उस परवरदिगार के साथ हमें मिलना है। जब तक इंसान अपने गुनाहों की तौबा नहीं करता है, मन नहीं फिराता है, वो कहता नहीं कि मेरा मजहब बहुत हो गया, मेरी बाहरी दिखावा बहुत हो गया और मेरी रीतें रवायतें रस्में बहुत हो गई हैं, मुझे रियल जो है खुदा की जरूरत है, अपने गुनाहों की तौबा। जी, आप दरअसल ज़बूर नवीस की जो बात है वो कहना चाह रहे हैं कि ऐ खुदा मैं तेरे हुजूर में अपने गुनाहों को मान लेता हूँ। ऐ खुदा मैं तेरे हुजूर में अपने गुनाहों को मान लेता हूँ। फिर वो चला उठता है और वो कहता है, खुदा देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं है, अगर है तो मुझ पर खोल दे। शायद मैं ये समझता हूं कि मैं तेरी राह पर हूं, मैं ये समझता हूं तेरी शरीयत की पैरवी कर रहा हूं, लेकिन उस शरीयत की पैरवी में भी मैं तेरी ताबेदारी से बाहर हूं। तू मुझ पर इस बात को खोल दे ताकि मैं मान लूं कि मैं तेरे हुजूर में गुनहगार ठहरता हूं, ताकि मैं बहाली को पा सकूं। तो आप दरअसल ये जो ज़बूर नवीस लिख रहा है उसी बात को बताना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पास्टर गिल साहब हमारे साथ हैं। तो जब हकीकत में कोई शख्स ऐसा कर लेता है पास्टर साहब, तो फिर उसकी निशानी क्या है कि उसकी तौबा कबूल हो गई है? पाकला में लिखा कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो वो हलीम होगा, खुदावन को खोजेगा, वो वाकई दुआ के साथ साथ जो है उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें जाहिर होंगी कि नफरत चले जाएगी, दुश्मनी चले जाएगी उनकी जिंदगियों से, मुआफी का जो बातें हैं वो जाहिर होनी शुरू हो जाएंगी, उसके रास्ते बदल जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, जारी रखिए। उनकी जिंदगी से, उनके कामों से जाहिर होना शुरू हो जाएगा अपने आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। हकीकी तौबा की कबूलियत में डॉक्टर साहब ने बताया है कि नफरत की जगह मोहब्बत होगी, नाइंसाफी की जगह इंसाफ होगा, बड़ा बनने की बजाय सर्वेंटहुड, खिदमत करना, खादम बनना आ जाएगा, दूसरों को रद्द करने की बजाय दूसरों को कबूल करना आ जाएगा, मौत की बजाय जिंदगी आ जाएगी। डॉक्टर साहब दुआ कीजिए कि खुदा ऐसा करने की तौफीक पूरी दुनिया के इंसानों को अता फरमाए ताकि बहाली आ जाए। दुआ कीजिएगा और फिर हम इख्तिताम करते हैं।
2 मिनट हैं खुदावंद- डॉक्टर साहब आपके पास। जी खुदावन शुक्रिया अदा करते हैं तेरे रहमो फजल के लिए, एक एक लम्हे के लिए, और खास तौर पर इन माहौलों को, इन सब हादसों को हम याद करते हुए आपके रहमो फजल की भीख मांगते और कहते हैं खुदा अपना हाथ बढ़ा दे, अपने फजल का हाथ बढ़ा दे, अपने इत्मीनान का हाथ बढ़ाए। खुदावन उन गमजदा हालातों में तो आके खुदा लोगों को संभाल, अजीजों पर फजल कर। खुदावन तेरे ओ रूह का मसा उन पर आए और खुदावन उनको संभाले, और ऐसी तबीयत डाल के खुदावन लोग हलीम हो जाए, टूट जाए और खुदावन के सामने गिड़गिड़ा के कहें खुदावन हम गुनाहगार हैं, हम पापी हैं, हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हमारी रस्में रीतें रवायतें काफी नहीं है कि हम आपके सामने वो पाक मुकद्दस ठहर सके। जब तक आप हमें अपने पाक मुकद्दस लहू से शुद्ध और साफ नहीं करते, तो खुदावन हम दुआ करते कि आप ऐसी तबीयत हम पर डाल, एक एक अजीज पर तेरे फजल का हाथ होने पर ब्लेस करें, एक एक उस दिल को, गमजदा मन को आप खुदावन तसल्ली दें, और खुदावन एक एक जन पर ऐसी तबीयत डाल के खुदावन वो टूटे और जानने पाए कि नफरत, दुश्मनी, लड़ाई झगड़े और दूसरों की बर्बादी जो है उनको खुदावन के पास नहीं ले जा सकती। ये नाश और डिस्ट्रक्शन वो उनको दोज़ख की ओर ले जाएगा। खुदावन का रास्ता जिंदगी है, सुलह है, प्यार है, मोहब्बत है। तो खुदावन ऐसा करम कर, ऐसा फजल डाल, एक एक जन पर तेरा बरकत का, शिफा का, रहम और फजल का हाथ मांग लेते, ब्लेस करें खुदावन यीशु के कवि और मुकद्दस नाम के वसीला से दुआ मांग लेते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर गिल साहब हमारे साथ थे। कलाम खुदा से इख्तिताम करते हैं। ये पहला यूहन्ना का खत है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। और यहाँ पर लिखा है 19वीं आयत है 4 बाब में, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से मोहब्बत रखे। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जो ये दावा करता है खुदा से मोहब्बत है जिसे वो नहीं देखता, इंसान जिसको वो देखता है, अगर उससे मोहब्बत नहीं रखता, कलाम खुदा बहुत वाज़ेह है, वो झूठा है। और अगर हम मुकाशफा की किताब में पढ़ें तो वहां पर लिखा है झूठों की मंजिल खुदा के साथ जिंदगी नहीं है, झूठों की मंजिल खुदा की जिंदगी से बाहर होगी। खुदा जिसकी पैरवी का दावा है, जिसको तू नहीं देखता उससे मोहब्बत का दावा, जिस भाई को तू देखता है अगर उससे मोहब्बत नहीं, नफरत है, तो कलाम खुदा में लिखा है तू झूठा है। खुदा हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम खुदा की मोहब्बत में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, एक दूसरे को गले लगाने वाले बन जाएं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने वाले बन जाएं, एक दूसरे को संभालने वाले, पालने वाले और उसकी बका की ख्वाहिश से भरे हुए बन जाएं। इसी दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। आपका मेज़बान दानियाल।